أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رب تقبل علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی بتا دیجیے آڈیو ویڈیو اسکرین سب کچھ آپ سے کلیئر ہے؟ الحمدللہ. چلیے ہم آج آگے بڑھتے ہیں. آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ پہلا رول. آج کی کلاس کا پہلا رول کیا ہے؟ لام جلالہ کا قاعدہ. تو لام جلالہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ دیکھ لیجیے کہ لام جلالہ کہتے ہیں کہ جو لفظ اللہ لکھا ہوتا ہے اس کے اندر جو لام کا استعمال ہوتا ہے، لفظ اللہ میں جس لام کا استعمال ہوتا ہے اسی کو لام جلالہ کہتے ہیں. جیسے یہاں پر اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے اندر جو لام یوز ہوا ہے اسی کو لام جلالہ کہتے ہیں. اور اس کے کیا ہے، کچھ رولز ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہم اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب ہم نے صفات کے ٹائم دیکھے تھے تو اس میں ہم نے کنڈیشنل سیکھ میں کیا رکھے تھے؟ لام اور را رکھے تھے. یعنی کہ لام اور را ایسے ہے حرف کہ انہیں کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. تو ابھی ہم اس میں انشاءاللہ دیکھیں گے لام کو. ٹھیک ہے. تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ عام الفاظ میں ہمیشہ لام کو باریک پڑھیں گے. لام کو کیسا پڑھنا ہے؟ ہمیں باریک پڑھنا ہے ہمیشہ عام الفاظ میں. جیسے یہاں پر اگزامپل دی گئی ہے لا، فلا، جعل، الا. تو یہاں پہ نارمل ہمیں لام کو باریک ہی پڑھنا ہے سوائے دو حالتوں کے. لام کو موٹا کب پڑھنا ہے؟ جب لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو. آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر ایگزامپل؟ جب لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو اسی وقت ہمیں لام کو موٹا پڑھنا ہے، ادروائز ہمیں لام کو ہمیشہ باریک ہی پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اور لفظ اللہ لکھا ہوا ہے ہمارے پاس، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آ رہا ہے تو بھی ہم لفظ اللہ کو کیسا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. تو لفظ اللہ کو موٹا کب پڑھا جا رہا ہے؟ جب اس سے پہلے زبر اور پیش آ رہا ہے. اور لفظ اللہ کو باریک کب پڑھا جا رہا ہے؟ جب اس سے پہلے زیر آ رہا ہے. اور عام حالت میں پڑھنا ہے، باریک ہی پڑھنا ہے. تو کتنی مرتبہ قرآن ہے؟ 2700 ٹائم یہ قرآن شریف میں آیا ہے. یعنی کہ تقریباً 4 بار ہر پیج پہ آتا ہے. 5 بار بھی آ سکتا ہے، کبھی 3 بار بھی آ سکتا ہے، ایسا ہے. تو اب دیکھیے اسے موٹا کس طریقے سے پڑھنا ہے. موٹا مطلب منہ بھر کے پر پڑھنا ہے پورا. اب ہم نے صفات میں بتایا تھے کہ اللہ اکبر اگر ہم پڑھ رہے اللہ اکبر تو معنی تبدیل ہو جا رہے، کیونکہ معنی کیسا ہو رہا؟ پڑھنے میں ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ لام کو اگر ہم باریک پڑھ رہے تو لا اللہ ایسا سنائی دے رہا ہے، لیکن ہمیں اسے کیسا پڑھنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے. اللہ اکبر. تو اسے ہم کس طریقے سے پڑھیں گے؟ LAW لا ہوتا ہے ہمارا. لا کس طریقے سے پڑھتے ہیں ہم؟ منہ بھر کے پڑھتے ہیں پورا، ہے نا. یعنی کہ یہاں پہ ہونٹ گول تو نہیں ہو رہے لیکن ہم اسے موٹا پڑھتے ہیں نا لا کو. اسی طرح اس لام کا بھی خیال رکھنا ہے میں کہ اللہ اکبر. اور دیکھیں اکبر میں کاف پہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمس ہو رہا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اللہ اکبر واللہ ان اللہ سبحان اللہ. تو یہاں پر آپ کو سب چیز کا خیال رکھنا ہے. اب دیکھیے الحمدللہ ہمارے بہت سے رولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں، صفات بہت سے ہماری نظروں کے سامنے آ چکے ہیں. لین اور لین ہو گیا، قلقلہ ہو گیا، ہمس ہو گیا، موٹے اونچے دباخے جو ہے، بہت سی صفات ہماری نظروں کے سامنے آ گئی ہیں. تو ان کا بھی خیال رکھتے ہوئے مخارج تو ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہوئے اور کیا کہتے ہیں ابھی جو رولس آ رہے ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا ہے. جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ لوگ جتنا جتنا سیکھ رہے ہیں اس کو آپ اپلائی کرنا سیکھیے. اب اسی طرح اگر لفظ اللہ سے پہلے اس کے جو لام ہے اس سے پہلے اگر پیش آ رہا ہے تو بھی ہم اس کو کیسا پڑھتے ہیں؟ موٹا پڑھتے ہیں کہ نار اللہ نصر اللہ. یہاں پر بھی لام کو
मोटा पढ़ रहे हैं। अदरवाइज लाम को बारीक कब पढ़ेंगे लफ्ज अल्लाह के, जब उसके पहले जेर होता है। जैसे यहाँ पर देखिए बिल्लाही वलिल्लाही, तो इस तरीके से इसे बारीक पढ़ना है। तो इसे मोटा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए कि बिल्लाही वलिल्लाही, तो ये गलत हो जाएगा। इसे बारीक पढ़ना है। बिल्लाही वलिल्लाही बिस्मिल्लाही सबिलिल्लाही, एकदम नॉर्मल इस तरीके से पढ़ते हैं। अच्छा हमको ये बताइए कि लफ्ज अल्लाह के नाम से पहले अगर जेर हो तो लफ्ज अल्लाह को कैसा पढ़ेंगे? मोटा, ऊंचा, बारीक? जी, देखिए क्वेश्चन गौर से पढ़िए आप लोग, कि लफ्ज अल्लाह का जो लाम है उससे पहले अगर जेर हो, ठीक है, जेर हो तो कैसा पढ़ेंगे? अगर उससे पहले जेर होता है तो हम उसे बारीक पढ़ेंगे। मोटा तो सिर्फ दो हालत में पढ़ेंगे, जब उसके पहले पेश हो रहा है या फिर उसके पहले जबर हो रहा है। तो ये था हमारा लफ्ज अल्लाह के लाम का कायदा, यानी कि लाम जलाला का कायदा। और ये काय में हमारा कंडीशनल थिक में पाया जाता है लेटर। तो कंडीशनल थिक में हमने कितने देखे थे? लाम और रा। तो रा के हमने कुछ बेसिक आपको कायदे बताए थे कि रा को मोटा कब पढ़ना है, कि जब रा के ऊपर जबर और पेश होता है तो उसे मोटा पढ़ना है, और जब जेर होता है तो उसे बारीक पढ़ना है। ये तो हमने आपको सरसरी तौर पर बता दिए थे। तो आज इंशाल्लाह हम रा के पूरे अहम कायदे देखेंगे कि उसको कब कब मोटा पढ़ा जाता है, कब कब उसे बारीक पढ़ा जाता है, वो इंशाल्लाह आज डिटेल में हम देखेंगे। अब देखिए, और ये जो राग का है ना, कुरान शरीफ में कितनी मर्तबा आया है? 12,000 मर्तबा आया है। उसकी अपनी मतलब मोटा बारीक दोनों के हिसाब से ये 12,000 मर्तबा, यानी कि 12,000 टाइम आया है, यानी कि एक पेज पे मोर देन 20 टाइम्स, और इक्वल टू 20 टाइम्स आता ही है। तो हम रॉ को मोटा कब पढ़ेंगे? सबसे पहले हम सारे उसकी कंडीशन देते हैं कि जब रॉ के ऊपर जबर होता है, जब क्या होता है? रॉ के ऊपर जबर होता है तो हम उसको मोटा पढ़ते हैं। ये तो हमने आपको पहले बता दिए थे। और जब मोटा पढ़े तो इसको हम कैसा पढ़ेंगे? जैसे इंग्लिश का ख्याल रखते हैं हम, RAW रॉ, उस तरीके से इसको भी मोटा पढ़ेंगे। रहीम, रसूल, रहीम, रसूल, ठीक है। ये होगी हमारी पहली कंडीशन, कि जब रॉ के ऊपर जबर होता है तो हम उसको मोटा पढ़ेंगे। फिर सेकंड कंडीशन है कि अगर दो जबर भी हो, जो हमारा तनवीन है, जिसे तनवीन कहते हैं, तो चाहे सिंगल जबर हो या फिर डबल जबर हो, हम रॉ को मोटा ही पढ़ेंगे। जैसे कसीरन, सगीरन, रॉ, रॉ, ठीक है। तो ये होगी हमारी पहले दो कंडीशन। फिर थर्ड कंडीशन हमारी ये है रॉ को मोटा पढ़ने की, कि जब रॉ के ऊपर पेश होता है तो भी हम रॉ को मोटा ही पढ़ेंगे। ये तो आपको लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं कि रॉ पे पेश होता है तो कैसा पढ़ेंगे? उसे मोटा पढ़ेंगे। खैरू, अक्सरू, अक्सरू, ठीक। तो इसी तरह जैसे जबर का मामला था तो पेश का भी होगा, कि अगर सिंगल पेश हो या डबल पेश हो तनवीन वाला, तो भी हम रॉ को मोटा ही पढ़ेंगे। जैसे गफूरुन, जिक्रुन, जिक्रुन, मुंह भर के पूरा हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर अभी तक हमने कितनी केसेस देख लिए? चार केसेस। अगर रा के ऊपर जबर हो या डबल जबर हो, पेश हो या डबल पेश हो, हम इसे रा को कैसा पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे। अब हमारे पास एक है पांचवी हालत, फिफ्थ केस। अगर रा पे सुकून हो, रा पे जबर भी नहीं है, पेश भी नहीं है, सिंगल भी नहीं, डबल भी नहीं, सुकून है, तो हम क्या करेंगे? उसके पहले वाला जो लेटर है उसकी हरकत को चेक करेंगे। अब उसके पहले देखिए जो भी लेटर है उसकी हरकत करेंगे। अब यहाँ पर देखिए रा के ऊपर क्या आ गया? सुकून आ गया, तो उसके पहले है, तो भी इसे मोटा ही पढ़ेंगे हम। अरसलना, अरसलना, अरसलना। फिफ्थ कंडीशन क्या मिलती है? कि अगर क्या आवाज सभी के साथ ब्रेक हो रही है? क्या आवाज का मसला सभी के साथ है? बताइए।
अच्छा, तो अभी आपको आवाज हमारी कैसी आ रही है? आवाज आ रही है? अच्छा, जब आपको आ जाए ना तब का तभी हमको बता दीजिए, ठीक है ना? चलिए, हो सकता है नेटवर्क इशू हो, हमारे पास हो, अल्लाह आसानी करे। ठीक है, चलिए, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हमने क्या देखे कि रा पे अगर जबर भी नहीं है, पेश भी नहीं है, डबल जबर भी नहीं है, डबल पेश भी नहीं है, तो हम उस पे सुकून है, तो हम क्या करेंगे, उसके पहले वाले लेटर की हरकत चेक करेंगे। ये क्लियर हो गया। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि रा पे तो सुकून है, तो उसके पहले वाले लेटर की हरकत देखने जा रहे हैं, तो हो सकता है उस पे भी सुकून हो, तो हम क्या करेंगे, उसके पहले वाले लेटर की हरकत चेक करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास छठा केस, रॉ को मोटा पढ़ने का। अब देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है सूर्य अस्र का, बेस्ट एग्जाम्पल दिख रहा है यहाँ पे आपको। रॉ पे क्या है, सुकून है, तो हमने आपको बोले उसके पहले वाले लेटर पे की साइन चेक कीजिए। अरे यहाँ पर तो वहां पे भी सुकून है, तो क्या करेंगे, उसके पहले वाले लेटर पे हम साइन चेक करेंगे। अब वहां पे जबर है, इसका मतलब हमें क्या करना है, इसे मोटा पढ़ना है रॉ को। तो वल अस्र बिस्सब्र, बिस्सब्र। अब देखिए जो जो आता है, जो जो सब इसके सब अंदर डाल दीजिए, जो जो आपको रूल्स याद है कि सौ कैसा है, बहुत मोटा और ऊंचा, इसे बहुत मोटा और ऊंचा पढ़ना है। ब पे क्या हो रहा है, कलकला हो रहा है। और र को कैसा पढ़ना है, मोटा पढ़ना है। इस तरीके से इंशाल्लाह आपकी तिलावत दुरुस्त हो जाएंगी, जो जो आप सीख रहे हैं उसको आप अप्लाई करते जाइए। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने टोटल केसेस हो गए, 6 केसेस हो गए। फिर हमारे पास है सातवां केस, रा को मोटा पढ़ने का। कि रा पे अगर सुकून है और उसके पहले अगर पेश आ रहा है, क्योंकि पेश भी तो मोटा वाला ही है ना, तो पेश को हम भूल नहीं सकते। तो अगर रा पे सुकून है और उसके पहले वाले लेटर पे पेश है, तो भी हम रा को मोटा ही पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, अल कुरआन, है ना, तो इसे कैसा पढ़ना है, मोटा पढ़ना है। तो ये होगी हमारी सातवीं केस। और आठवीं हमारी केस कौन सी है, कि रा पे सुकून, उसके पहले सुकून, और उसके पहले अगर पेश हो तो हम तब भी रा को मोटा ही पढ़ेंगे। ये क्या हो गया, खुस्रो, खुस्रो। तो ये टोटल केस थी रा को मोटा पढ़ने की। अब ये बताइए, यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन की समझ में नहीं आया हो, रॉ को कब मोटा पढ़ना है, क्योंकि हमने बहुत सुकून से, बहुत आराम से लिए। ये समझ में आया आपको, हम आगे बढ़ना? अच्छा, खुस्र, खुस्र, खुस्र। ठीक है, इस तरीके से। अब ये हो गया मोटर का केस। अब हम रा को बारीक कब पढ़ेंगे? अब ये तो एक केस पता थी आपको बारीक पढ़ने की, कि जब जेर हो, तो जेर डबल हो या फिर सिंगल जेर हो, रा को हम कैसा पढ़ेंगे, बारीक, यानी कि नॉर्मल पढ़ेंगे। रिज्कू, अमरी, ये क्या हो गया हमारा, नॉर्मल। ये दो केसेस तो पता है हमको रा को बारीक पढ़ने के। और तीसरी केस भी इसमें बनती है रा को बारीक पढ़ने की, कि हो सकता है ना ऐसा कि रा के ऊपर सुकून हो और उसके पहले जेरो, हो सकता है जैसे आप जबर के और पेश के साथ हो रहा था, तो वैसे ही इसके साथ भी हो सकता है कि रा पे अगर सुकून है और उसके पहले जेर है, तो भी हम रा को बारीक पढ़ेंगे। जैसे वॉस बिर, फिर आऊना, रा को कैसा पढ़ रहे हैं हम, नॉर्मल, बारीक। और इसकी फोर्थ केस क्या बन सकती है, कि रा पे सुकून है, उसके पहले वाले लेटर पे भी सुकून है, और उसके पहले जेर है, तो भी हम क्या करेंगे, रा को बारीक ही पढ़ेंगे। हिज्र, हिज्र, नॉर्मल, हिज्र, हिज्र, र को एकदम बारीक पढ़ रहे। तो खुलासा इसका ये है कि र को मोटा कब पढ़ा जा रहा है, कितनी हालतों में, 8 हालतों में। और बारीक कितने पढ़ा जा रहा है, 4 हालतों में। क्योंकि मोटे के लिए दो हरकत है ना, जबर की और पेश की, और बारीक के लिए सिर्फ एक हरकत है, बारीक के लिए सिर्फ एक हरकत है। तो ये हो गया हमारा रा के कायदे। अब हमको ये बताइए कि वल अस्र पर अगर हम रुकना है हमें, तो हम रॉ को कैसा पढ़ेंगे, रॉ को बारीक, ऊंचा, मोटा।
हम र को मोटा पढ़ेंगे, सही जवाब, मोटा पढ़ना है। अब रा साकिना से पहले खाली जगह हो तो रा को मोटा पढ़ेंगे। अगर रा साकिना से पहले सुकून हो तो, या फिर पेश हो तो, या फिर जेर हो तो रा साकिन यहाँ तक सबको क्लियर है? बता दीजिए। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्लाह का करम है कि यहाँ तक क्लियर। क्योंकि अब हम आगे ना कुछ स्पेसिफिक इसके केसेस देख रहे हैं। अभी तक हमने रा के क्या देख लिए, आम उसके और अहम कायदे देख लिए हमने। ये इसके अहम है और इसके कॉमन रूल्स है, आम कायदे हैं। और इसके अंदर हर इसमें देखो कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं ना, तो इसके अंदर भी 3 स्पेसिफिक केसेस हैं। तो वो हम आपको बताते हैं, गौर से सुनिएगा, ठीक है। अभी हमने क्या देखे थे कि रा साकिन से पहले जेर है तो हम उसको बारीक पढ़ते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन रा पे अगर शद्दा है, रा पे अगर शद्दा आ रहा है, तशदीद आ रही है, तो हम उसे कैसा पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। रा पे अगर शद्दा आ रहा है, तशदीद आ रही है, तो उस रा को हम मोटा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को श्रद्धा का तो पता है कि श्रद्धा कैसी साउंड होती है, डबल साउंड होती है, एक सुकून के साथ और एक वो जो हरकत उसके ऊपर है वो। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि रा पे अगर श्रद्धा आ रहा है तो उसको हम कैसा पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, चाहे उसके पहले जेर ही क्यों ना हो। जैसे लिर्रहमान युसिर्रूना, युसिर्रूना। तो ये तो पहली केस से बहुत आसान है कि रा के ऊपर श्रद्धा है तो उसे हम मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारे पास है सेकेंड केस, इसको जरा गौर से देखिए। अभी हमने आपको क्या बताया है थोड़े टाइम पहले, कि जब रा साकिन है हमारे पास और उसके पहले जब जेर आ रहा है तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। हम उसे तमाम हुरूफ के साथ बारीक पढ़ेंगे सिवाय ये 7 के। जब इस रा साकिन जेर वाली रा साकिन के बाद ये जो हुरूफ मुस्तालिया जिसे कहते हैं, जो हमारे पास है ना, कि बहुत मोटे और ऊंचे हुरूफ 4, मोटे और ऊंचे 3, 4 + 3 7, इन दोनों को आपस में मिला के क्या कहते हैं, 7 को एक साथ हुरूफ मुस्तालिया, जिसे मोटा ऊंचा पढ़ा जा रहा है। तो इसके बाद जब ये लेटर्स आ रहे हैं ना, तब हम रा को कैसा पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, ना कि बारीक। देखिए आम हालत में ऐसी रा को कैसा पढ़ेंगे हम, बारीक पढ़ेंगे। लेकिन जब ये 7 में से कोई फौरन बाद आ रहा है, जैसे यहाँ पे काफ आया है, यहाँ पे तो आया है, यहाँ पर सौद आया है, तो इस रा को भी हम क्या करेंगे, उसे मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी सिफत का असर इस पे, इस रा पे पड़ता है। तो इसको हम कैसा पढ़ेंगे, फिर कतुन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फिर कतुन बोले तो फिर नॉर्मल र बारीक है ऐसा यहाँ पर, लेकिन र को मोटा पढ़ेंगे। फिर कतुन, फिर कतुन, फिर कतुन, फिर कतुन, इस तरीके से। किरतौस, बिल मेरो, यहाँ पे हम रॉ को कैसा पढ़ रहे हैं, मोटा पढ़ रहे हैं। तो ये सेकेंड जो है केस, ये स्पेशल केस में है कि जब 7 लेटर्स जो है इसमें से कोई भी आता है तो ऐसी राग को हम बारीक ना पढ़ते हुए मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास है तीसरी केस। अब हमने क्या देखे थे अभी कॉमनली, कि रा साकिन है, उसके पहले सुकून है, उसके पहले जबर है ना। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, और इसे मोटा ही पढ़ेंगे सिवाय एक केस में। कब, कि जब रा साकिन से पहले नरमिया आ रही है,
کیونکہ نرم یا کب ہوتی ہے؟ یائلین ہماری یا ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے تو وہ نرم یا کہلاتا ہے. تو جب را ساکن سے پہلے یا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، نرم یا یائلین آ رہا ہے، تو اسے سافٹلی پروناؤنس کرنا پڑے گا ہمیں، یعنی کہ ہمیں باریک پڑھنا پڑے گا. عام حالت میں ایسی را کو موٹا ہی پڑھا جاتا ہے، سوائے ایک حالت میں، جب را ساکن سے پہلے حروف لین میں کا یا آتا ہے یا لین آتا ہے، تو اس را کو ہمیں باریک پڑھنا ہے، جیسے خیر، تویر، غیر. ٹھیک. تو یہ آپ کو اچھا مجھے یہ بتائیے، را ساکینہ سے پہلے زیر ہو تو را کو کیسا پڑھیں گے؟ یہاں پہ کوئی اسپیشل کیس نہیں ہے، نارمل پوچھا جا رہا ہے کہ را ساکینہ سے پہلے زیر ہو تو اس را کو کیسا پڑھیں گے؟ جی تو اس را کو ہم باریک ہی پڑھیں گے. تو یہ اس کی خاص حالتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں. جو را کی ہماری خاص حالت ہے، جو دو کیسز سے اسپیشل سمجھنے لائق، تین حالتوں میں سے ایک تو بہت آسان ہے کہ شدہ جب آئے گا تو اسے ہمیں موٹا پڑھنا ہے را کے اوپر. دوسرا ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو عام حالت میں اسے باریک پڑھتے ہیں، لیکن جب را ساکن سے پہلے زیر ہو اور اس کے بعد جو 7 لیٹر ہے ہمارے صاد ضاد طا ظا قاف غین خا، اس میں سے کوئی بھی آتا ہے تو ہم اسے کیسا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. پھر ہمارے پاس تیسری کیس کیا تھی کہ را ساکن سے پہلے یائلین آ رہا ہے تو اسے ہم نرم پڑھیں گے. اب بتائیے، یہ کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ بتائیے یہ کلیئر ہے آپ کو، اس کے اسپیشل کیسز بھی؟ جی الحمد للہ. لیکن دیکھیے اب ہم آپ کو رولس تو بتا دے رہے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، آپ لوگ اس کے نوٹس بنائیں گے، اس کو ریویژن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دماغ میں ہمیشہ رہیں گے، وہ پھر نکلیں گے نہیں. اگر آپ ریویژن نہیں کریں گے، صرف کلاس میں ہی آ رہے اور کلاس میں ہی پڑھ رہے ہیں، تو بہت جلد بھولنے کی آپ کے امکان ہے کہ ہو سکتا ہے بہت جلدی بھول جائیں. ٹھیک ہے. جی جو پی ڈی ایف ہم نے آپ کو شیئر کی ہے نا، اس سے آپ لوگ نوٹس بنانے میں ہیلپ لے سکتے ہیں، اور جو آپ بنا رہے ہیں تو اس کا بھی فائدہ آپ کو ہوگا انشاءاللہ.